Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. The topic we are going to present today is Chordata or Vertebrata. Chapter number 8. Okay. Chapter number 8 is regarding classification of animals. It comes under Kingdom Animalia. So let's discuss the second part now, because the first part was invertebrates. We have discussed that the animals who do not have the vertebral columns in them. Now we are going to discuss the animals who have the vertebral column. So let's start with the vertebrates or chordates. Chordata and vertebrata are separate phylum. Let's discuss both the phylum first. Okay. So first we are going to see the basic features of phylum Chordata. Okay. The phylum Chordata have a solid elastic rod-like supporting structure called notochord. यानी इनकी बॉडी में एक सॉलिड इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहा जाता है, इसलिए इन एनिमल्स को हम कॉर्डेटा कहते हैं. All the chordates have a dorsal hollow tube. At the dorsal side, at the upper side, there is a hollow tube present, and that tube is known as nerve cord. It means that the nervous system is not much developed, but the nerve cord is present in them. The brain is not present, the brain is not much developed, but the nerve cord is present, which helps them in the receiving of sensation and messages. Then they have affairs of opening present in the walls of the pharynx, inside, internally to the mouth. They have the pair of openings present. That openings are called pharyngeal gill slits. The pharyngeal gill slits are used for the process of respiration. Okay, these animals are triploblastic, means they have three living layers of tissues: the ectoderm, the endoderm, and the mesoderm. They have the three layers present in them, which are the living layers. They are triploblastic organisms. Their body cavity is called phylum. ओके, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है ये. इनकी बॉडी कैविटी सिलोम कहलाती है, और ये बॉडी कैविटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है. बॉडी कैविटी का मतलब जैसे हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो ऐसे ऐसे कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर. इन कैविटीज को सिलोम कहा जाता है. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें कंप्लीट और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है. दैट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ रीजन एंड इट ends at the anus region. Okay, so these are some of the characteristics of phylum Chordata. Again, they have a rod elastic structure which is solid, and it is used for supporting purpose. That is known as notochord. They have a dorsal hollow tube-like structure that is called notochord that helps in the process of nervous system. Then they have the pair of opening that is present in the walls of the pharynx. That openings are called pharyngeal gill slits. The pharyngeal gill slits are used for respiration. They are triploblastic animals. It means that their bodies consist of three living layers: the ectoderm, the mesoderm, and the endoderm. Okay, their body cavity is very much developed, and the body cavity is called coelom. So the body cavity developed है और coelom कहलाती है. A complete alimentary canal is present. It means right from the mouth till the anus, the complete digestive system is present in these organisms. They are phylum chordates. Let's discuss the features of phylum Vertebrata. Okay, the vertebrates are basically in the vertebrates you will see that all the vertebrates normally have the vertebral column present in them. So notochord, the solid elastic structure, is being replaced by the vertebral column. The backbone is present in them. Okay. Secondly, the brain in the vertebrates is protected in the brain box. So they have a complete nervous system present in them, and the brain is protected in the skull. The skull is also called the brain box or the cranial box. So in that the brain is protected. They have well developed endoskeleton, means जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, जो हड्डियां है, ये एंडोस्केलेटन कहलाता है. तो हमारी बॉडी में एक बहुत डेवलप्ड, वर्टेब्रेट्स की बॉडी में एक बहुत ही डेवलप्ड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. And then they have very well developed systems present in them. So इनके जो systems होते हैं वो systems भी बहुत ज़्यादा developed होते हैं. ठीक है, और इन तमाम के अंदर pair of limbs present होते हैं, यानी legs present होते हैं, except snakes. कुछ के अंदर four limbs जो है वो hand में modify हो जाते हैं, कुछ में wings में modify हो जाते हैं, और जो hand limbs है जिसके अंदर हमारे पास जो है हमारी feet है,
इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी फीट है, तो वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्नैक्स इनमें एक्सेप्शन है, स्नैक्स के अंदर ये फीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं या लेग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। So these are the two phylums, and actually what we are going to discuss in this chapter are the vertebrates. We will discuss all the vertebrates, जितने भी vertebrates हैं हम सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो vertebrates हमने यहाँ देखने हैं। Let's see some of the, and this is basically the you can say the chordata. They are fish-like animals. You can see here that the body is basically the body has this is the rod-like structure. Okay, this is the rod elastic structure. This elastic structure is known as notochord. Okay, then we have this one. This is the dorsal hollow nerve cord. So it's basically not developed nervous system. You cannot say that they have brain and they have a much developed system, but this nervous system, nerve cord is present in them. Okay, you can see the anus is present here, the mouth is present here. This is the digestive tract. Right from here, it starts and it goes to here. So this is the digestive tract. These are the pharyngeal gill slits present inside the mouth region. Inside the pharynx, they are present. They are also known as clefts. These pharyngeal gill slits are used for the respiration purpose. You can see here the muscle segments are present. Okay, you must see in the fish as well. These segments are present in the fishes as well. So they live in water, not outside the water. They're fish-like animals. But these are chordates. Okay, let's see the different classes of vertebrata. Vertebrates have 5 classes. First one is Pisces. Pisces को हम फिश कहते हैं, मछलियाँ जिस कैटेगरी में आती है उन्हें हम Pisces कहते हैं. Okay, then we are having the second one, that is the amphibia. Amphibians जो है ये dual life animals होते हैं, means they live in water as well as on land. Third class जो इनकी है वो है हमारे पास किस चीज की, that is the third class is basically of the reptilia. Reptilia को हम crawlers भी कहते हैं, और crawlers means कि ये रेंगते हैं जमीन के ऊपर. So on their belly they normally do what? They normally crawl. Okay, aves है फिर. Aves are commonly known as birds. जितने भी birds है वो सारे aves की categories में आते हैं. Then we are having mammalia. So mammals जितने भी हैं, those who have the mammary gland, and this mammary gland help them in the production of the milk. So milk की जो प्रोडक्शन होती है वो मेमोरी ग्लैंड से होती है. मैमल्स नॉर्मली अपने यंग वंस को अपने मिल्क से फीड कराते हैं. तो ये 5 कैटेगरीज है, 5 क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की. ठीक है, एक हमारे पास पाइसेस है जो कि फिश है. सेकंड एम्फीबिया है जो कि डुअल लाइफ है. थर्ड रेप्टिलिया है जो कि क्रॉलर्स है. फोर्थ एव्स है जो कि बर्ड्स है. और फिफ्थ जो है वो मेमेलिया है जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. We are having Pisces. Let's discuss the Pisces first. यानी fish को पहले डिस्कस करते हैं कि fish क्या होते हैं. Okay, first of all, the first character of fish are they are cold-blooded animals. Okay, cold-blooded animals उन animals को कहा जाता है जिनका body temperature variable होता है. Means अपने surrounding के लिहाज से या अपने body के temperature को change कर सकते हैं. So they are known as कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, बिकॉज चाहे सर्दी हो या गर्मी हो इनको रहना कहाँ पर है, पानी के अंदर रहना है, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को वेरिएबल करते हैं, चेंज करते हैं. तो इस वजह से इनको पानी में या हैबिटेट में रहने में आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती. सेकेंड कैरेक्टर है दे आर एंटायरली एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स. मीन दे विल लिव इन वाटर. पानी के बगैर ये वर्टेब्रेट्स सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर लंग्स नहीं होते. ठीक है, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि ये नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है, और ये इसलिए इस बॉडी इस तरह से बनी हुई होती है ताकि जब ये पानी के अंदर स्विम करे तो रेजिस्टेंस कम से कम हो, मुखालिफत कम से कम हो, और ये इजीली स्विम कर सके. इसी पैरामीटर के ऊपर जो है एरोप्लेन्स बने हुए हैं, इसी पैरामीटर के ऊपर जो है वो समुद्री जहाज बने हुए हैं, ताकि या रॉकेट्स बने हुए हैं ताकि वो जब ट्रेवल करे पानी के अंदर या वो ट्रेवल करे एयर के अंदर तो वो इजीली जो है वो हवा को या पानी को चीरता हुआ आगे जाए और रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो. सो द बॉडी आर स्ट्रीमलाइंड. ओके, दे ब्रीथ बाय द मीन्स ऑफ गिल्स.
सो रिस्पायरेशन जो ये करते हैं, ब्रीदिंग जो ये करते हैं, गैशियस एक्सचेंज जो ये करते हैं, वो गिल्स के जरिए करते हैं, ठीक है। और गिल्स के ऊपर जो है बोन्स के प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। सो जब आप एक मछली को देखते हो, उसके हेड रीजन को, तो ऊपर फ्लिफर प्रेजेंट होते हैं, बोन्स की फ्लिफर्स होती है, ये फ्लिफर्स ओपेरिकुलम कहलाते हैं। और इन फ्लिफर्स के नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, वो इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मली ये इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज। ओके, द बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। मछलियों की बॉडी 3 रीजन्स में डिफरेंशिएट होती है। पहला रीजन इनका हेड रीजन आता है, दूसरा रीजन इनका ट्रंक आता है, ठीक है, ये जो मिडल रीजन जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल रीजन जो है वो इनका ट्रंक रीजन है, और तीसरा रीजन जो है वो इसका टेल रीजन है, जो आखिर का रीजन होता है टेल। तो ये 3 रीजन इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्केल प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्केल नॉर्मली इनकी प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। तो आप मार्केट में जाके मछली खरीदते हो तो आप उस मछली वाले को कहते हो इसको साफ कर दो, स्केल उसमें से हटाएं। तो वो स्केल ऐसे ही होते हैं जैसे कि बोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हो या कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उनको हम हटाते हैं, नीचे से फिर उनकी बॉडी जो है वो हमारे पास एक्सपोज होके आती है, जो मीट है वो एक्सपोज होके आता है। माउथ हैज टीथ, माउथ में टीथ प्रेजेंट है, विच आर यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग, मींस किसी चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन खुराक को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो टीथ आर नॉट यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस, ये ग्राइंडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास रोहू है, कैटफिश है, हेल्सा है, ट्राउट है, महाशीर है, ठीक है, और बहुत सारी मछलियां हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। पपलेट है, ठीक है, व्हाइट पपलेट, ब्लैक पपलेट। सो शार्क है, द बिगेस्ट फिश इज शार्क, सबसे बड़ी जो मछली है वो शार्क है, ठीक है। डॉल्फिन और वेल मछलियां नहीं है, डॉल्फिन और वेल जो है वो मैमल्स में आती है, क्लियर। सो ये हमारे पास हो गया क्लास स्पाइसेस, जो कि पहली क्लास थी हमारे पास। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, और गिल्स के जरिए ये ब्रीथ कर रहे थे। बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड थी, हेड, ट्रंक और टेल में। बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट थे, ठीक है। माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए नहीं होते। और एग्जाम्पल्स हमने देखी कि रोहू, कैटफिश, हेल्सा, ट्राउट, शार्क, महाशीर, puplet, etc. are the examples of the fishes, and many more can also be there. So ये हमारे पास हो गया class spices. Hope you understand all. Now let's move toward the second class, that is amphibia. Okay, amphibians जो होते हैं basically ये group of animals है जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। So amphibian का मतलब ही होता है dual life. Okay, they are called amphibian because they can live in water as well as on land. So because of that we call them amphibians. Okay, they are also cold-blooded animals, means they cannot maintain their body temperature. Their body temperature is variable, so change होता रहता है body का temperature इनका according to their environment. So they can survive each and every kind of environment as well. They have 4 limbs, यानी 4 legs होते हैं इनके, whose fingers are clawless. फिंगर और क्लॉलेस का मतलब ये है कि फिंगर जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उनमें डिजिट्स नहीं होते, क्लॉज, पंजा नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। सो 4 लिम्स होते हैं, लेकिन इन चारों लिम्स में अगर आप देखेंगे तो दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा, डिजिट्स इनके अंदर नहीं होंगे, क्लॉज इनके अंदर नहीं बनेंगे, यानी पंजा नहीं बनेगा इनके अंदर, ठीक है। तो ये इनकी करेक्टर है। अच्छा, एडल्ट एम्फीबियन जो होते हैं, यानी जो बड़े एम्फीबियंस होते हैं, नॉर्मली इनका जो स्किन होता है वो थिन होता है, मॉइस्ट होता है और स्लाइमी होता है। So because of this thin, moist and slimy skin, they can do the process of gaseous exchange or respiration in water as well. तो जब ये पानी के अंदर होते हैं तो वहां तो इनके पास गिल्स नहीं होते, तो फिर ये क्या करते हैं, नॉर्मली ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके अंदर लंग्स होते हैं उस टाइम में, और लंग्स जो है वो पानी के अंदर इनको सर्वाइव नहीं करा सकते, तो इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट स्किन, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बहुत सारी, उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस पॉसिबल हो जाता है और ये सर्वाइव कर जाते हैं पानी के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, इनके जो यंग वन होते हैं, नॉर्मली अगर आप एग्जांपल ले लो टेडपोल की, टेडपोल इज द एग्जांपल ऑफ द यंग वन ऑफ फ्रॉग, तो वो मछली की तरह होते हैं और उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो एडल्ट ना हो जाए। तो जब तक वो एडल्ट होते हैं उनमें चेंजेस आती है, उसके बाद वो उनके अंदर लंग्स आ जाते हैं, गिल्स खत्म हो जाते हैं और फिर वो जमीन पर सर्वाइव करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली अपर जॉ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इनके ये जो टीथ है इनको हम वोमराइन टीथ कहते हैं,
और ये वो मेराइन टीथ किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये वो मेराइन टीथ नॉर्मली ये खुराक को ग्रेस्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब खुराक इनके मुंह के अंदर चला जाए तो ये दांत बंद हो जाए और खुराक वापस ना आए, खुराक को मुंह के अंदर रख के ताकि वो नीचे चला जाए, स्टमक में चला जाए तो बाहर ना आने पाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे यूज देयर टीथ। विंटर में ये हाइबरनेशन शो करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब ये कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये रॉक्स और मड्स के नीचे चले जाते हैं, वहां पर ये पड़े हुए होते हैं थ्रू आउट द एंटायर विंटर सीजन और अपने एक्टिविटीज को महदूद कर लेते हैं। तो इनकी एक्टिविटी महदूद होने की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा सर्व नहीं होती है, ठीक है, और इनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं होती है। सो थ्रू आउट एंटायर सीजन वो वहाँ पर रहते हैं और जब फिर बरसात के सीज़न आते हैं, इनके मैटिंग के सीज़न आते हैं, तो ये फिर अपने स्लीप से जागते हैं, ये बाहर आते हैं, मैटिंग करते हैं, ठीक है, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक 4-5 महीने के टाइम पीरियड के लिए ये बाहर रहते हैं। आफ्टर दैट दे बिगेन अगेन बिकम गोज इनटू द हाइबरनेशन। सो हाइबरनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म विंटर में स्लीप करते हैं। ये इनकी एक एडेप्टेबिलिटी है कि उनके बॉडी टेम्परेचर तो चेंज इनका होता नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं, बॉडी टेम्परेचर जो इनका है वो मेंटेन नहीं रख सकते, ये वेरिएबल टेम्परेचर होता है। सो इस वेरिएबल टेम्परेचर की वजह से ये अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी रिजर्व कर देते हैं और रॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब दोबारा सीजन आता है फिर ये बाहर निकल आते हैं एंड देन दोबारा अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपना प्रोसेस करते हैं। एग्स जो है ये पानी में ले करते हैं। फीमेल फ्रॉग्स जो होती है या फीमेल एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में एग्स ले करते हैं और मेल एम्फीबियन जो होते हैं वो उसके ऊपर स्पर्म ले करते हैं और पानी में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, यानी यंग वन जो है वो पानी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर पानी में ही वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। तो जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है डुअल लाइफ ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में भी पाए जाएंगे और ये आपके पास जो है जमीन पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो एम्फीबियन अगेन इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल जिनके अंदर क्या हो, डुअल लाइफ हो, जिन्हें पानी और जमीन दोनों में रह सकते हो। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये 4 लिम्स होते हैं इनके अंदर लेकिन क्लॉज नहीं होते इनके अंदर। ठीक है, एम्फीबियन जो एडल्ट एम्फीबियंस है उनका थिन मॉइस्ट स्किन होता है जो कि इनको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, टीथ इनके यहाँ पर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, वो मराइन टीथ कहलाते हैं, वो खुराक को ग्रेस्प करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विंटर में ये हाइबरनेशन शो करते हैं और एग्स जो है वो पानी में ले करते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी क्या है, फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्लास जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास एम्फीबिया। डन इट। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड वन नाउ। द थर्ड इज reptilia, characters of class reptilia. Okay, already we discussed that reptilia जो है ये क्या है, ये crawlers हैं। crawlers means कि ये organisms जो है ये जमीन पे crawl करते हैं। ठीक है, और ये organism जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जस्ट लाइक द अदर 2 ग्रुप्स जो हमने डिस्कस किए। इनका बॉडी टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है, बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वैसे ही इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इससे इनको हेल्प मिल जाएगी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो इजीली उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है, इनको हम कहते हैं फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट का मतलब ये होता है कि ये पहले वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पानी में ये जाते जरूर है, आप क्रोकोडाइल को देखो पानी में जाता जरूर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसको जमीन पर आना पड़ता है, रिप्रोडक्शन वो जमीन पे करते हैं। तो जितने भी हमारे पास रेप्टिलिया हैं, सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए जमीन पर आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फर्स्ट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। इससे पहले जो एम्फीबियंस थे वो पानी में कर रहे थे रिप्रोडक्शन, पाइसेस तो पानी में ही करते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये पहले वर्टेब्रेट्स हैं जो कि जमीन पर आते हैं अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, एग्स ये कहाँ ले करते हैं, ये लैंड पर एग्स ले करते हैं। बेशक ये पानी में जाते जरूर है लेकिन एग्स पानी में नहीं ले करते। एग्स कहाँ ले करेंगे, ये लैंड पे ले करेंगे एंड आफ्टर दैट जमीन पर दे हैव टू रिप्रोड्यूस। ओके, दे हैव थिक ड्राई एंड रफ स्किन। स्किन जो इनकी होती है ना रेप्टाइल्स की, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, टर्टाइल्स हो गया, ठीक है, स्नेक हो गया, लेजर्ड हो गया, इनकी सबकी जो स्नेक होती जो स्किन होती है वो थिक होती है, बिल्कुल ड्राई स्किन होती है और रफ होती है।
उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इन जो स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम एपिडर्मल स्केल कहते हैं। एपिडर्मल कहते हैं पहले लेयर को। तो स्किन के ऊपर जो पहला लेयर प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मल स्केल्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है। द लिम्स हैव डिजिट्स विद क्लॉज, जैसे हमारे फिंगर्स है डिजिट्स है 1 2 3 4 5 आप डिजिट्स गिन सकते हो, और क्लॉ बनता है यानी पंजा बनता है। सो अनलाइक एम्फीबिया, इनके अंदर जो लिम्स होते हैं वो लिम्स कैसे होते हैं, उनके अंदर डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें पंजा बनता है, क्लॉज बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है इसके अंदर स्नेक, स्नेक एक एक्सेप्शन है बिकॉज स्नेक्स डू नॉट हैव द लिम्स इन देम। स्नेक के लेग्स नहीं होते, ठीक है, स्नेक के लेग्स नहीं होते हैं। बाकी तमाम रिप्टाइल्स के लेग्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें लेग्स होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग जो है ये लंग्स के जरिए करते हैं, ठीक है, इनमें लंग्स होते हैं, वेल डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, और उन लंग्स को ये इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रीदिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। दोनों जॉस के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। अपर जॉ में खुसूसन जो है वो शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये टीथ जो है ये ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अटैक के लिए या अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जिनके हमारे पास लेजर्ड्स है, स्नेक है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। ये सारी जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इसमें हम दोबारा इसके कैरेक्टर देख लेते हैं रेप्टाइल्स के, क्रॉलर्स के, कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स से ये एग्स जमीन पर ले करते हैं, रिप्रोडक्शन जमीन पर करते हैं। स्किन जो इनकी होती है वो थिक, ड्राई और रफ होती है, और उसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्स के अंदर डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। ब्रीदिंग अपने लंग्स के जरिए करते हैं, और दोनों जॉस के अंदर, दोनों जबड़ों के अंदर इनके टीथ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स में इनके लेजर्ड्स है, स्नेक्स है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है। अब लेजर्ड हो गया, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इन तमाम के अंदर जो है वो लिम्स या लेग्स प्रेजेंट होती है। स्नेक्स के अंदर लेग्स नहीं होती। तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ स्नेक्स एज वेल, ठीक है। स्नेक्स में हमारे पास जो है थोड़े से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्नेक्स को हम लिम्बलेस रेप्टाइल कहते हैं, लेगलेस, इनके लेग्स नहीं होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज लिम्बलेस रेप्टाइल्स विदाउट लेग्स, लेग्स नहीं होते हैं इनके अंदर। सम ऑफ देम आर डेडली पॉइजनस, ठीक है। कुछ स्पीशीज इनके ऐसे हैं जो खतरनाक तरीन तरीके से उनके अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है, बहुत डेडली पॉइजनस होते हैं वो, और इनका पॉइजन जो है वो विनम कहलाता है। द स्नेक पॉइजन इज नोन एज venom, ठीक है। So ये venom कहाँ प्रेजेंट होता है? The venom is present in the upper jaw, near the upper jaw there is a gland present। एक ग्लैंड होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, इस ग्लैंड के अंदर ये पॉइजन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, और उस पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। स्नेक की बॉडी में अपर जॉ के अंदर जो जगह होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वीनम कहते हैं। वीनम वहां पर प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ वहां पर लंबे दांत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉइंटेड और शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ये स्नेक्स अपने प्रे को, अपने शिकार को अटैक करते हैं, तो वो जो फैंग्स होते हैं उनकी बॉडी में जो है वो गाड़ देते हैं, जस्ट लाइक इंजेक्शन, और फिर उन फैंग्स के जरिए ये क्या करते हैं, वो जो पॉइजन होता है वो इंजेक्ट करता है इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। तो प्रे के बॉडी में वो पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, वो पॉइजन चला जाता है आपकी ब्लड के अंदर, फिर ब्लड में सर्कुलेट करता है, और जब वो ब्लड में सर्कुलेट करता है तो पूरी बॉडी उससे पॉइजनस हो सकती है, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है इंसान या किसी भी एनिमल की डेथ इससे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्लॉट्स बनाता है अंदर, क्लॉट्स बनने की वजह से जो है एक तो इंसान का जो हार्ट है वो बंद हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आती है बॉडी के अंदर, तो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो इसलिए स्नेक जो है अगर सपोज किसी को काट ले किसी भी जगह पर, तो फौरन से हमें क्या करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर काट लिया है उसको हमने क्या करना है, हमने टाइटली बांधना है। लेट्स सपोज अगर किसी को हाथ पे काट लिया, तो आपने जस्ट हाथ पे काट लिया, तो यहाँ पर रेस्ट वाली पोजीशन पे आपने इस रेस्ट को टाइट बांधना है, इतना टाइट बांधना है ताकि ब्लड की फ्लो रुक सके, ताकि जहर जो है, जो पॉइजन है वो यहीं पर रहे, वो पूरी बॉडी में ना फैले। सिमिलरली अगर लेग में काटा है कि और काटा है, तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस कि हम हॉस्पिटल जाए, वहाँ इस पॉइजन को रिमूव किया जाए, तो इंसान की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बच सकती है, या उनकी डेथ होने से बच सकता है। लेकिन
अगर इस पर डिले किया जाए और ऐसी जगह में काटे जहाँ पर ये वाला प्रोसेस मुमकिन ना हो, तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि इंसान की डेथ हो जाए उसमें से। ठीक है, तो एक तो ये बहुत ही खतरनाक स्नैक्स यहाँ पर होते हैं, जिनके एग्जांपल्स में हमारे पास वाइपर है, कोबरा है, ठीक है, अफ्रीकन बीटस है। तो ये जो स्नैक्स है बहुत डेंजरस स्नैक्स होते हैं, डेडली होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली स्नैक्स का जो है हर जगह में पाए जाते हैं, हर जगह में हो सकते हैं, लेकिन जो ज़रा खतरनाक स्नैक्स होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली जो है आपके पास सहराओं के अंदर, गर्म इलाकों के अंदर जो है, जहाँ पर आबादी थोड़ी कम हो, उन जगहों में ये स्नैक्स ज़्यादा पलते हैं और गर्मियों में बाहर निकलते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो पानी वानी पीने के लिए ये बाहर निकलते हैं और फिर आपको ये रास्तों में डिफरेंट जगहों में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को बचाना चाहिए इसमें से। स्नैक्स, पॉइजनस स्नैक्स जो होते हैं उनको मारना जो है वो ज़रूरी है कि आप उसको मारें, अदरवाइज वो आपके लिए खतरनाक होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ स्नैक्स जो है वो नॉन पॉइजनस है, यानी वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, सो और नॉन पॉइजनस स्नैक जो है दैट्स नॉट डेंजरस, ये इसी तरीके से है जैसे बाकी वर्म्स है, लेकिन पॉइजनस स्नैक्स जो है उससे अपने आप को बचाना है, वाइपर से, कोबरा से, ठीक है, अफ्रीकन बीटस से। तो ये तमाम वो स्नैक्स है जिनसे अपने आप को अपने बचाना है। ठीक है, अगेन स्नेक्स क्या है, लिम्बलेस रेप्टाइल्स है। इनमें से बहुत सारे पॉइजनस हैं, बहुत सारे जो है नॉन पॉइजनस है। पॉइजन जो इनका वो वीनम कहलाता है, और वीनम कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर जॉ के अंदर एक ग्लैंड होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और इसके साथ फैंग्स प्रेजेंट होते हैं, पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसके जरिए ये अपने वीनम को अपने शिकार के अंदर जो है वो इंजेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वाइपर है और कोबरा है इनकी एग्जाम्पल्स में। ठीक है ना, होपफुली कि आप लोगों को जो है ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट लेक्चर लेना है वो इसका सेकंड पार्ट लेना है और उसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है।